Namaste Gurukulians, hope you are doing well at home and study continuously. Today we are going to start chapter number 17 of class 11th biology, and the name of chapter is breathing and exchange of gases. So this is the first video of this chapter, so I have written part 1. So now first of all we will start with two basic terms. First, what is breathing? Breathing is just intake and throw out of oxygen and carbon dioxide respectively, means intake of oxygen and throw out of CO2. So this is just exchange of gases, breathing. While respiration, another term which is, we can say it is a biochemical process, while breathing is a physical process. So first of all we will write what is breathing. So breathing is just intake of O2 and throw out CO2. So these are two steps. This is called as inhalation and this is called as exhalation. In मतलब अंदर लेना, ex मतलब बाहर छोड़ना, out, towards outside. So breathing, it is a physical process. So this is the process which does not produce any energy, rather it will consume some energy during inhalation या inspiration. This is exhalation or expiration. So inhalation or inspiration. सांस अंदर की तरफ लेना इज इनहेलेशन और इंस्पिरेशन, और बाहर की तरफ छोड़ना इज एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन. सो इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस विच विल नॉट प्रोड्यूस एनी एनर्जी, रादर इट विल कंज्यूम एनर्जी. नेक्स्ट, रेस्पिरेशन. So respiration is rather a biochemical process. Biochemical process which occurs inside the cell to oxidize the food and producing energy. ठीक है. सो दिस इज ए बायोकेमिकल मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी which will happen within the human body. So all those reactions are called as biochemical reactions or biochemical processes. So respiration is a biochemical process which occur inside the cell to produce energy. यहाँ पे energy produce नहीं होगी but यहाँ पे होगी. So we will differentiate it, both the terms breathing and respiration. So the first point will be, it is a
physical process, it is biochemical process. तो जब हम सांस लेते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस में सेल्स तक जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, वो सिर्फ हमारी लंग्स तक पहुंचती है, ठीक है। सो इन ब्रीदिंग वी कैन से इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, मतलब ये वो प्रोसेस है जो सेल के अंदर नहीं हो रही है, ठीक है। वाइल रेस्पिरेशन जो है वो सेल के अंदर होगी, सो इट इज इंट्रा सेलुलर प्रोसेस। तीसरा, ब्रीदिंग में हमने बोला था कि एनर्जी बनेगी नहीं, कि कुछ स्टेप पे एनर्जी यूटिलाइज जरूर होगी, ठीक है। सो एनर्जी not produced, rather used during इंस्पिरेशन। सांस लेते टाइम पे कुछ एनर्जी यूटिलाइज होएगी। यहाँ पे एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो रही है। फोर्थ, so as we are saying that this is a physical process, then it will not utilize any enzyme, जबकि जो बायोकेमिकल प्रोसेस होती है वो हरदम एंजाइम्स की हेल्प से होती है। तो फोर्थ पॉइंट हम वो लिख सकते हैं, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एंजाइम्स। यहां पे लिखेंगे एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। सो दीज आर सम बेसिक। फिफ्थ पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं, ब्रीदिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो हम 2 प्रोसेस में नहीं डिवाइड कर सकते, 2 स्टेप में नहीं डिवाइड कर सकते। दैट कैन बी ए पॉइंट ऑल्सो। Now next, now respiration is of 2 types, aerobic and anaerobic. I am going to differentiate it directly. So points जो हैं वो directly इसी में explain करेंगे। So aerobic respiration and anaerobic respiration. बेसिक सा पॉइंट जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन जब भी होगा, इट विल कंप्लीटली ब्रेक डाउन द फूड इनटू CO2 एनर्जी एज वेल एज वाटर। सो यहाँ पे लिखेंगे हम कंप्लीट breakdown of food to produce water, CO2 and energy। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन।
इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। अगर हम चाहें तो इसी पॉइंट को तीसरा पॉइंट बना सकते हैं, अभी बनाते हैं इसको। यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन, वहाँ लिख दिया हमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, यहाँ पे लिख देंगे इट विल प्रोड्यूस, ब्रेकडाउन के बाद क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, इट प्रोड्यूसेस वाटर CO2 एंड एनर्जी, इट प्रोड्यूसेस एल्कोहल एंड एनर्जी एंड CO2. But there will be a difference, that energy will be produced in both the cases, whether it is aerobic or anaerobic, but the amount of energy will be always higher in case of aerobic respiration. So यहाँ लिखेंगे हम high energy produced, low energy produced. Now aerobic respiration कहाँ मिलती है आपकी, मोस्टली इन all cells, human beings, or we can say directly higher plants and animals. Simple, higher plants and animals. While it is found in yeast, ठीक है, and here it is called as fermentation. So the process of anaerobic respiration, which is found in yeast to produce alcohol, is called as fermentation. But this fermentation will always produce lesser amount of energy as compared to aerobic respiration. So next topic will be different organs of respiration in different organisms. Respiratory organs in animals. सबसे पहले लिखेंगे हम स्पंजेस, टीनोफोरा, sponges, टीनोफोरा and some platyhelminths. Rather, we will make another point of platyhelminths. Sponges and ktenophora, respiration will be done through diffusion, through body surface. तो जो उसकी बॉडी वाल होगी उसी के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, ठीक है. स्पंजीज एंड टीनोफोरा. सेकेंड, उसके आगे लेते हैं हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स.
ये आप लोगों ने ये चीज़ें 9th क्लास में पढ़ी होंगी डाइवर्सिटी चैप्टर के अंदर। So these are different kingdoms, different phylum of animal kingdom. So platyhelminths के अंदर there are two options. If they are free living, like planaria, then it is through body surface, and if it is parasitic, एग्जाम्पल है आपका लीवर फ्लूक और टेपवॉर्म, then they will perform respiration anaerobically. So we will write anaerobic respiration. So ये चीज़ ध्यान रखनी है। लीवर फ्लूक और टेपवॉर्म, दे आर पैरासिटिक, दे आर प्रेजेंट inside the small intestine of human being. Next is निमेटोडा, या इसको हम एस्क हेलमिन्थ्स भी बोलते हैं। इसमें सारे फ्लैटवॉर्म्स आते हैं, इसके अंदर राउंड वॉर्म्स आते हैं। सो निमेटोडा में भी दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर वो फ्री लिविंग है, एग्जाम्पल है आपका रेबडाइटिस, RHABDITIS, then respiration will be through general body surface या body wall लिख सकते हैं हम। If they are parasitic, for example Ascaris lumbricoides is the full name, इसको राउंड वॉर्म बोलते हैं हम, पेट के कीड़े। सो एस्केरिस जो है वो पैरासिटिक है, इट विल अगेन डू एनारोबिक रेस्पिरेशन। Next we will move to Arthropoda. Arthropoda is the phylum of animal kingdom which has all the organism having jointed legs. ठीक है, Arthropoda jointed legs। जैसे कॉकरोच होता है, कॉकरोच के जो वेंट्रल साइड होती है, टोटल 6 टांगें होती हैं, 6 लेग्स होती हैं। पहली 2 जो हैं वो आपस में ऐसे अटैच होती हैं, फिर दूसरी 2 सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। सो नीचे साइड से जहाँ पे ज्वाइंटेड होंगे लेग्स, उसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। इट विल इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल द इंसेक्ट्स। सो आर्थ्रोपोडा में हम कुछ एग्जांपल्स लेके चलेंगे। For example, prawns, PRAWNS. So prawns have gills. I am writing from here directly. Insects, general insects, tracheal system, spiders and scorpions, book lungs, and limulus और king crab, केकड़ा। It is having book gills। सो इसके अंदर ये जो 2 चीज हैं, ये नीट के अंदर इनमें से पूछा जाता है आपका
व्हाट आर बुक लंग्स एंड बुक गिल्स किसके अंदर पाए जाते हैं? बुक मीन्स इसके अंदर जो लंग्स या गिल्स होंगे उसकी लेमिले होंगी, लेमिले मतलब लेयर्स। जैसे हम बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, 200-300 पेज, तो एक के साथ दूसरा जो है बिल्कुल पैरेलली अरेंज्ड होता है, सेम अरेंजमेंट इसके अंदर होता है, इसलिए हम उसको बुक लंग्स या बुक गिल्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू फिशेस, सबको पता है गिल्स होते हैं। एम्फीबियंस में फ्रॉग का एग्जाम्पल, amphibian, I will rub it first. So frog का स्पेसिफिकली एग्जाम्पल लेते हैं हम। फ्रॉग के अंदर 3 तरीके से रेस्पिरेशन हो सकता है। क्यूटेनियस मतलब स्किन या थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, तो ये वाला जो होता है ये या तो होता है आपका ड्यूरिंग अंडर वाटर, अंडर वाटर 50% यही करता है, एंड हाइबरनेशन के टाइम पे 100% रेस्पिरेशन विल बी डन बाय स्किन, जनरल बॉडी सरफेस, दैट विल बी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। सेकेंड है इसका बक्कोफेरेंजियल। बक्कोफेरेंजियल मतलब इसका जो फेरिंग्स होता है माउथ ओरल कैविटी के पीछे, बक्कल कैविटी मतलब ओरल कैविटी माउथ वाली, और उसके पीछे जो एरिया है उन दोनों को मिला के बक्कोफेरिंग्स बोलते हैं। सो उसके अंदर जो म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है दैट इज हैविंग ए टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द सरफेस। सो ये भी क्या करेगा, एक तरह का एक आपके पास मेथड है रेस्पिरेशन का, बक्कोफेरेंजियल। So this is when not submerged in water, जब पानी के अंदर नहीं है ये। तो जब पानी के अंदर था तो क्यूटेनियस, जब पानी के अंदर नहीं है तो बक्कोफेरेंजियल, एंड थर्ड इज पल्मोनरी। पल्मोनरी रेस्पिरेशन सिर्फ तभी होगा जब इसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा है कि भाई उस टाइम पे बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ज़्यादा टू प्रोड्यूस एनर्जी, पर उतनी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाती है। ओनली इन दैट केस ही इज़ गोइंग टू, द फ्रॉग इज़ गोइंग टू यूज़ हिज लंग्स। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि जैसे हमारे अंदर लंग्स के नीचे एक डायफ्राम होता है, डोम शेप, तो डायफ्राम की मूवमेंट ऊपर नीचे ऐसे होगी तो हमारे लंग्स के अंदर हवा अंदर आती है या बाहर जाती है। तो जो प्रेशर ऑफ एयर है दैट कैन बी रेगुलेटेड बाय डायफ्राम, बट इन फ्रॉग देयर इज नो डायफ्राम, सो इट हैज़ टू शिफ्ट इट्स फोर्स फ्रॉम डायफ्राम टू nostrils, mouth and gullet. So pulmonary respiration during heavy physical activity, मतलब हाईली एक्टिव जब होगा। तो अभी मैंने बताया एब्सेंस ऑफ, यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं, एब्सेंस ऑफ डायफ्राम सो
यूज nostrils and gullet to regulate air pressure in lungs. तो ये वाला जो पार्ट था आपका डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, इसमें से नीट में मोस्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। सो जहाँ से एक ये पॉइंट फ्रॉग के अंदर भी कई बार पूछा जाता है। एक पॉइंट और रह गया इन वाटर स्नैक्स के अंदर भी 20%। सो वाटर स्नैक्स जो हैं 20% क्यूटेनियस, मतलब अगेन बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं वो, ठीक है। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। Next, we are starting another topic, that is human respiratory system. So the basic structure of human respiratory system we have already studied in class 10th also. So first of all, I am going to draw it. Before that, the human respiratory system is divided into two parts: conduction of gases and exchange of gases. कंडक्शन मतलब ट्रेवलिंग की, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहाँ से कहाँ तक, सिर्फ नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हो गए लंग्स तक जाना, दैट इज कंडक्शन ऑफ गैसेस। फिर लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना विद ब्लड, that will be covered under exchange of gases. So first of all, we are going to start with A part, that is conduction of gases. For that, I need to draw a structure of human respiratory system. I will draw just basic structure. So it will start with nostrils. दीज आर वर्टिब्रे, जो हमारी बैकबोन होती है नेक के अंदर, वो दिखा रहा हूँ यहाँ पे।
It will take around 15 minutes more. 15 minutes. So this is the basic structure in which we are showing. This is nasal chamber. Or cavity. So it will start with nostrils first of all. Nostrils are two openings through which air can be inhaled. अंदर की तरफ ले जाती है, ठीक है. सो नॉस्ट्रिल्स के अंदर क्या होता है, द स्पेसिफिक pseudo stratified columnar epithelium having hair-like structures and secrete mucus to prevent entry of dust particles and microbes. तो जो हमारा नॉस्ट्रिल से लेके पूरा ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, यहाँ तक जितनी भी ट्यूब वाला सिस्टम है, उसके अंदर एक लाइनिंग है कॉलमनर एपिथेलियम. एपिथेलियम हमने पढ़ा होगा 9th में. सो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है जिसके ऊपर बहुत सारे हेयर लाइक के स्ट्रक्चर्स हैं. दोज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्लस द म्यूकस प्लस दिस लेयर विल ऑल्सो सिक्रेट म्यूकस. सो बोथ दीज components will prevent the entry of dust particles as well as microbes, so that the filtered air will reach into these bag like structures called as alveolus or alveoli. So this is nasal cavity. Now this is the region of pharynx. I have already discussed that pharynx is the common path of passage for food as well as air. तो यहाँ से अगर food आएगा तो भी इसी में आएगा, अगर air आएगी तो भी इसी में आएगा. So this area is called as pharynx. The pharynx is further divided into 3 parts. Oropharynx, सबसे पहले nasopharynx, second one is oropharynx, and third one is not written here. So basically it is divided into 3 parts. I am unable to recall that name. So this is pharynx. So air will come from nostrils, move from pharynx to trachea. So the opening of this trachea into pharynx, this opening is called as glottis, while this is food pipe या esophagus. So esophagus की जो ओपनिंग होगी फेरिंग्स के अंदर उसको बोलते हैं हम गलेट. ट्रेकिया या विंड पाइप की जो होती है ओपनिंग उसको बोलते हैं हम ग्लोटिस. सो दिस आई एम राइटिंग ट्रेकिया और विंड पाइप. So glottis is the opening of trachea. Now this glottis is covered by a membranous flap. This membranous flap.
It is made up of hyaline cartilage, elastic cartilage, and the name is epiglottis. ठीक है. सो एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया. ये चीज़ मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में भी बताया था कि ये मेम्ब्रेनस फ्लैप जो है, जैसे ही फूड ऊपर से आएगा, ये मेम्ब्रेनस फ्लैप विल कवर द ग्लोटिस. सो ग्लोटिस के ऊपर कवर होने की वजह से क्या होगा? द फूड विल डायरेक्टली ट्रेवल इनटू ईसोफेगस. सो एपिग्लोटिस. नाउ द ग्लोटिस विल बी फॉलोड बाय नेक्स्ट एरिया इज लैरिंक्स. लैरिंक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स और एडम्स एप्पल. सो लैरिंक्स होता है ये वाला, ये जो हड्डी सी हमारे गले में दिखती है, दिस इज लैरिंक्स विच इज कवर्ड आउटसाइड बाय, लैरिंक्स इज कवर्ड बाय हायोड बोन. ठीक है. तो जो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है दैट इज एक्चुअली हायोड बोन, जिसके पीछे लैरिंक्स है. लैरिंक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉइस, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट voice box. And inside the lumen of this larynx we have membranous vocal cords. Made up of mucous membrane. So membranous vocal cords are present inside lumen of larynx. So गले की जो हड्डी है वो, उसके ये हड्डी है जो वो है हायोड बोन. उस हायोड बोन के पीछे क्या है? लैरिंक्स. लैरिंक्स का जो ल्यूमन है उसके अंदर क्या है? मेम्ब्रेनस वोकल कॉर्ड्स. सो ये वोकल कॉर्ड्स जब हिलती हैं, वाइब्रेट करती हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो माउथ है उससे साउंड प्रोड्यूस होती है. सो इन केस ऑफ मेल, vocal cords are longer and thicker. So अगर थिकर हैं तो वाइब्रेट करने में वाइब्रेशन कम होगी. जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी उतनी ही जल्दी हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, उतनी ही हमारी पिच ऑफ वॉइस जो है वो हाई होगी, जितना फास्ट वाइब्रेट करेगा. तो हमने बोल दिया मेल के अंदर वोकल कॉर्ड जो है वो मेम्ब्रेन जो है वो बहुत थिक है और बड़ी है, इसलिए वो वाइब्रेट स्लो करेगी. सो वोकल कॉर्ड्स आर लॉन्गर एंड थिकर, सो स्लो वाइब्रेशंस. और स्लो वाइब्रेशन होगी तो हाई पिच ऑफ नहीं लो पिच ऑफ वॉइस, लो पिच वॉइस in case of male, but in case of female it is just opposite. So vocal cords are thinner and smaller. तो ये क्या करेंगी? वाइब्रेट फास्ट and it will produce high pitch sound.
तो वो जो हम लोग कई देखते हैं ओपेरा वगैरह, जिसके अंदर वो लेडीज़ जो गाती हैं लगातार वाइब्रेट करते हैं अपने गले को, तो वो क्या करती हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। उनकी जो वोकल कॉर्ड्स जो हैं, वो मेम्ब्रेन्स हैं, वो इतनी ज़्यादा वाइब्रेट करवाते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। जो उनका नंबर ऑफ वाइब्रेशन होता है वो हमारी वाइब्रेशन से कम 3 या 4 गुना तक होता है। तभी उनकी जो पिच होती है वो बहुत लो होती है और हमें लगता है कि वो हमारे कानों को सूदिंग इफेक्ट नहीं देती है। So now we will come from larynx to trachea. So larynx will be followed by trachea. So trachea is a hollow pipe-like structure which is covered by membranous rings. I am rubbing it. सो जो ट्रैकिया है, इट इज डोर्सली वेंट्रली मतलब सामने वाली साइड से, वेंट्रली कवर्ड बाय सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज। तो कई बार नीट में यही पूछ लिया जाता है कि आपका जो ट्रैकिया के अंदर जो कार्टिलेज के रिंग्स हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स, हाइलिन कार्टिलेज रिंग्स, तो वो रिंग्स कौन से कार्टिलेज की बनी हुई है? वो इलास्टिक कार्टिलेज की है, हाइलिन कार्टिलेज की है, या किसी और कार्टिलेज की है? सो आवर आंसर विल बी hyaline cartilage. And the function of this hyaline cartilage is to prevent collapsing of trachea during expiration. जब हम हवा बाहर निकालते हैं तो उस टाइम पे प्रेशर कम हो जाता है एयर का, तो कम होने की वजह से कहीं वो ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, चिपक ना जाए ऐसे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक थोड़ा सा हार्ड सरफेस प्रोवाइड करता है। हमने सी शेप इसलिए लिखा इसको क्योंकि ये फ्रंट में तो पूरा दिखाई देगा आपको, बैक साइड में पूरा नहीं है। तो जैसे हम सी लिखते हैं, दिस इज फ्रंट साइड, दिस इज बैक साइड, बैक साइड में कंप्लीट नहीं है ये रिंग, सो दिस इज सी शेप्ड रिंग। नाउ दिस trachea will be followed, this trachea will divide to produce, trachea will divide to give rise bronchus, ब्रोंकाई बोलेंगे, सिंगुलर इज ब्रोंकस। सो ये जो ट्रैकिया जो डिवाइड होगा वो कहाँ डिवाइड होगा? दिस डिवीजन, दिस बाइफर्केशन इज एग्जैक्ट वर्ड, बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया टू गिव राइज टू ब्रोंकस, टू ब्रोंकस लेफ्ट एंड राइट। सो ब्रोंकस जो होगा इट विल डिवाइड इनटू अप एट लेवल ऑफ 5th thoracic vertebra। वर्टिब्रा क्या होता है? जो हमारी बैकबोन है उसके अंदर बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं, ठीक है। तो हमारा ये वाला रीजन डायफ्राम से ऊपर यहाँ तक, दिस इज थोरेकिक रीजन। तो इस रीजन के अंदर हमारी बैकबोन में जितनी भी वर्टिब्रे हैं उसके अंदर 5th जो थोरेकिक वर्टिब्रा है उस रीजन पे आके इसका बाइफर्केशन होता है, ठीक है। थोरेकिक रीजन के बाद डायफ्राम से नीचे हम बोलते हैं लंबर रीजन। सो बाइफर्केशन के बाद ब्रोंकस विल फर्दर डिवाइड इनटू ब्रोंकियोल्स।
Some of the books may also write primary bronchus, secondary bronchus, then secondary bronchus will ultimately give rise to tertiary bronchus, and tertiary bronchus will ultimately give rise to bronchioles. These are smaller pipes which will be followed by a pouch like structure. So bronchioles are terminated into single cell thick bags called alveoli. So ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर हैं, these are alveoli. ये alveoli के साथ वाला जो स्ट्रक्चर है, this is bronchioles. This is bronchus, this one. So these alveoli are actually the site of exchange of gases. और एक्सचेंज होगा किसके साथ? हर एक जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, मान लो ये एक ब्रोंकियोल था, इट विल बी टर्मिनेटेड इनटू दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई. इस एल्वियोलाई के साथ में यहाँ पे ब्लड वेसल्स फ्लो कर रही हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है. सो एयर जो हमने इनहेल करी, यहाँ पे एयर का अमाउंट ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड के अंदर कम है, तो द एयर या ऑक्सीजन विल डायरेक्टली डिफ्यूज फ्रॉम एल्वियोलस टू ब्लड वेसल. सो यहाँ से जो आपका ऑक्सीजन है दैट कैन बी कैरीड अप टू ऑल बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स एंड अल्टीमेटली टू एवरी सेल, सो दैट द सेल विल बी एबल टू यूटिलाइज दिस ऑक्सीजन टू oxidize the food, to break down the food aerobically and to produce energy. So this is all about human respiratory system. In next topic we are going to discuss the specific structures and function of lungs. Till then, goodbye, thank you.